Hello everyone. Today we are going to start chapter 1 of class 10th chemistry. The name of the chapter is chemical reactions and equations. As you all know, this chapter is really very important because in this chapter you will learn how to write chemical equation, how to balance chemical equation. So let us start with the chapter chemical reactions and equations. So, before starting of the chapter, we are going to discuss about the basics of the chapter. Clear? Or you can say basics of chemistry. As you all know, the first 20 elements are very important, and without these, we cannot do first chapter. Clear? So you can learn the first 20 elements with the mnemonics also. So what are the first 20 elements? We will see their symbols, their electronic configuration, valency, atomic mass, and which type of cation or anion they forms. So the first element is hydrogen, symbol H, and the valency of hydrogen is 1. Helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. So आप इसकी वैलेंसीज को कैसे लर्न कर सकते हो लाइक 10 1 2 3 4 3210 1 2 3 4 3210 1 2 like this you can learn their balances और बाकी बेसिक कंसेप्ट तो तुम लोगों ने 9th क्लास में सीखा ही है कि if one valence electron is there then it will lose or gain one electron. If two valence electrons are there in helium, it will not accept or it will not lose because it is already fully filled. So अगर ना ये electron लेगा ना ये देगा then its valency is 0. Then again lithium outermost shell में कितने electrons है 1. So 1 ये lose कर सकता है easily but 7 gain नहीं कर सकता. So जितने ये lose करेगा उतनी उसकी क्या होगी valency. So the valency of lithium is 1. Like this, valency of beryllium is 2. And what is a mnemonics? To learn the first 20 elements, I made this mnemonics high. One video also I have shared of the mnemonics of first 20 elements. You can watch that video. So helium, hi, hello, listen, B, B, C, news, on, Friday, night. Clear? This is a one code to learn the first 20 elements. So next 20 elements क्या है? ना, मांग, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू cake. So with this mnemonics you can remember the first 20 elements. So next thing जो हमें इस chapter के लिए चाहिए that are very important cations and anions. As we have already done in class 9 cations क्या होते हैं? So cations को करने से पहले तुम्हें the term ion के बारे में पता होना चाहिए. आयंस क्या होते हैं? एक्चुअल में आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है. वी कैन से द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन. सो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज क्या हो सकता है? नेगेटिव. अगर चार्ज पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन. वो क्या बनाएगा? कैटायन. क्लियर? इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन वो क्या बनाएगा? एनायन. क्लियर? क्या बनाएगा? एनायन. एनायन. सो अब हम करते हैं कैटायन कब बनते हैं? जब वो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है. एनायंस की फॉर्मेशन कब होती है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटायंस हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनायंस हैं, आई एम टेलिंग यू. इसके बाहर 10th में से कोई कैटायन और एनायन नहीं पूछा जाएगा. सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1, lithium +1, sodium, potassium, copper, silver, mercury. So remember these things, these elements form valency +1. So these are the divalent cations: magnesium, calcium, zinc, lead, barium, copper, iron, मैग्नीज. सो इसमें बात याद करने वाली कॉपर के बारे में है. कॉपर की दो वैलेंसीज होती हैं, वन इज +1 एंड सेकेंड वन इज +2.
सो अगर अकेला कॉपर लिखा हुआ है देन ऑलवेज वी आर टेकिंग 2 वैलेंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कंपाउंड्स भी देखने को बहुत मिलेंगे। बट +1 तुमने कब लेनी है, जब लिखा हो क्यूप्रस, क्लियर, when the name of the copper is mentioned cuprous, तो हमें कौन सी वैलेंसी लेनी है +1, बट अगर लिखा हो क्यूप्रिक देन वी विल टेक वैलेंसी 2, क्लियर। बट अगर अकेला कॉपर लिखा हो देन ऑलवेज टेक 2। सिमिलर इज द केस विद आयरन, आयरन का सिंबल Fe, आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती हैं, वन इज +2 एंड अनदर वन इज +3। +2 कब होती है, जब फेरस है, +3 कब होती है, जब फेरिक है। अगर कभी भी मेंशन नहीं किया देन वी आर टेकिंग +2। इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, +2, बट आयरन के हमें बहुत सारे कंपाउंड +3 के भी देखने को मिलते हैं। सो फेरस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और फेरिक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और यू कैन से वैलेंसी इज +3, बट ओनली इफ आयरन इज मेंशन देन क्या लेनी है, उसकी वैलेंसी +2। सो दीज आर द बेसिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक के बिना हमारा ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता, क्लियर। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट एनाइंस, बिकॉज वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ केमिकल फार्मूलाज, है ना। अगर केमिकल फार्मूलाज आएंगे तो तुम लोग इक्वेशन लिख पाओगे, उसके लिए तुम्हें वैलेंसीज आनी चाहिए। सो हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, फ्लोराइड F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, एल्यूमिनेट AlO2 नेगेटिव, एसीटेट CH3COO नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव। सो ऑक्साइड, ऑक्साइड कौन से, अब डाइवेलेंट एनाइंस आ जाते हैं, उनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कार्बोनेट, सल्फेट, these are really very important and one is oxide also। so oxide की पता ही हमें, ऑक्सीजन की जैसे 2 होती है वैसे ही ऑक्साइड भी ऑक्सीजन ही होता है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, जिंकेट ZnO2 2 नेगेटिव, मैग्नेट MnO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 negative, oxalate C2O4 2 negative, and the important trivalent anion कौन से हैं हमारे पास, phosphate PO4 3 negative, nitrite N3 negative, phosphide P3 negative। So we have done with the cations and anions। मैंने फास्ट ही करवाया बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन इन 9th क्लास। इफ यू डोंट नो टिल नाउ देन लर्न, जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट cations and anions लिखे हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाहर कोई नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो लर्न बाय हार्ट वंस यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर class 9th also and for class 10th also। As you know, firstly I have written the name of the compound is calcium oxide, this is a chemical name and a very important common name जो हम 10th class में बार बार use करेंगे, that is quicklime। So कैल्शियम का सिंबल सी है, फर्स्ट रूल राइट देयर सिंबल, सेकंड रूल राइट देयर वैलेंसीज। सो सिंबल्स के नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 2 के साथ 2 कट हो गया, क्या बन गया इसका फॉर्मूला CaO। सो कॉपी पेन उठाओ, साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हें आते हैं देन अगेन प्रैक्टिस इट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम और यू कैन से लाइम वाटर, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला, सबसे पहले इनकी वैलेंसीज आनी चाहिए, राइट देयर सिंबल्स देयर वैलेंसीज, देन क्रिस क्रॉस करना है। इसमें मेजर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, दे आर राइटिंग लाइक दिस Ca, फिर लिख देते हैं OH, देन भाई H के पैर में ही लोअर सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देते हैं, दे आर नॉट यूजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यूज करनी बनती है भाई, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ भी तो है 2, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। व्हाट इज लाइमस्टोन, कॉपी पेन ले लो, साथ साथ लिखो, प्रैक्टिस करो। सो कैल्शियम सिंबल इज Ca,
carbonate symbol is CO3. The valency of calcium is +2. The valency of carbonate is -2. 2 के साथ 2 कट हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट. सो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड. ट्राई टू डू योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड 2 नेगेटिव. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, MgO. Magnesium hydroxide. Symbol of magnesium is Mg. Hydroxide is OH. The valency of magnesium is +2. OH की valency -1. then criss cross करेंगे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या बोलते हैं हम इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंड इसकी एक एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड एज अ एंटा एसिड. किस में यूज करते हैं ये हम, एज अ एंटा एसिड. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास द सिक्स्थ क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, ऑक्साइड 2 नेगेटिव. सो क्रिस क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, Al2O3. Sodium hydroxide, Na +1 OH -1. The formula is NaOH. Barium chloride, very important from the first chapter. Barium valency is +2, chlorine valency is -1. So criss cross करने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है BaCl2. Aluminium chloride, the valency of aluminium is +3, the valency of chlorine is -1. So when you will criss cross, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3. एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें बहुत बच्चे बार बार गलती करते हैं, मिस्टेक के चांसेस रह जाते हैं. ठीक है, सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की वैलेंसी -2. क्रिस क्रॉस करेंगे Al2SO4 3. सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट -1. क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या बन जाएगा, Na2SO4. नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम सल्फेट. बेरियम सिंबल इज Ba, वैलेंसी इज +2. सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. 2 के साथ 2 कट हो गया तो इसका क्या बन गया, BaSO4. सोडियम क्लोराइड, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, क्लोरीन Cl. +1 है तो 1 को लिखना तो जरूरी होता ही नहीं है. फेरिक ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फेरिक मीन्स अब आयरन की कितनी वैलेंसी हमें यूज करनी है, +3. ऑक्सीजन की -2, क्रिस क्रॉस करके हमारे पास आ जाएगा Fe2O3. लेड ऑक्साइड Pb +2, ऑक्सीजन -2. 2 के साथ 2 कट हो गया, क्या बन गया, PbO. फेरस सल्फेट Fe +2, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. 2 के साथ 2 कट, सो इसका फॉर्मूला बन गया FeSO4. इट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्वर ऑक्साइड, सो सिल्वर की वैलेंसी याद रखो ऑलवेज +1. फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag2O. नेक्स्ट ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट. द सिंबल ऑफ लेड इज Pb, नाइट्रेट NO3. The valency of lead is +2, nitrate -1. Criss cross करेंगे PbNO3 twice. Then silver bromide, silver +1, bromide -1. Criss cross करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, AgBr. नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर सल्फेट. कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2. क्रिस क्रॉस करने के बाद CuSO4. जिंक सल्फेट अगेन +2, ZnSO4. लेड क्लोराइड Pb +2, क्लोरीन -1. क्या आ जाएगा फॉर्मूला, PbCl2. कॉपर क्लोराइड, कॉपर वैलेंसी इज +2, क्लोरीन -1, CuCl2. कॉपर नाइट्रेट अगेन सिमिलर ऑफ द लेड नाइट्रेट. कॉपर की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 एंड द फॉर्मूला इज CuNO3 twice. कॉपर ऑक्साइड Cu +2, ऑक्सीजन -2, CuO. सिल्वर नाइट्रेट, द वैलेंसी ऑफ सिल्वर इज +1, नाइट्रेट -1. क्रिस क्रॉस करेंगे AgNO3. कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की +2, नाइट्रेट की -1, अगेन CaNO3 twice. पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम वैलेंसी इज +1, सल्फेट वैलेंसी इज -2. फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम +2, क्लोराइड -1, AmGCl2. सो नेक्स्ट आ गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
कैल्शियम +2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 +2 -1 क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा CaHCO3 ट्वाइस. Sodium bicarbonate NaHCO3 really very important from the second chapter point of view. Again sodium carbonate is also really very important. Then sodium aluminate from third chapter, very important. Means I have covered all the compounds which you will discuss in class 10th. कोई भी नहीं छोड़ा है मैंने. So these are really very important. Share with your friends also so that those students who don't know these formulas they can revise and learn these formulas. Okay, sodium aluminate, then sodium zincate, these both are very important from the third chapter point of view. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. अकेला अमोनिया हो तो NH3 है भाई. अगर अमोनियम हो किसी के साथ कंपाउंड बना है तो NH4+1 होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, लेड आयोडाइड. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बनता है. पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम सल्फेट हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट. पेन पेंसिल उठाओ और खुद प्रैक्टिस करो भाई, बैलेंसेस आनी चाहिए तुम्हें. पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, हमें पता है इसका पर्पल कलर होता है. नेक्स्ट पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, फेरिक ऑक्साइड FeOH थ्राइस, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4. लेड एसिटेट भी इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है. NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है इसके बेसिस के ऊपर. सो दैट्स व्हाई आई पुट 2 क्वेश्चंस ऑफ दैट आल्सो. सोडियम एसिटेट. सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कितने हैं भाई 60 है. ठीक है. पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3. Potassium chlorate is also very important because we will discuss in thermal decomposition. हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी NCERT के क्वेश्चंस में है. कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, then you will discuss about potassium chloride, sodium bromide, sodium sulfide, आयरन क्लोराइड. भाई एक दो शायद रह गए हैं आई थिंक इम्पॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन. सिल्वर क्लोराइड, it is also very important. I think I skipped this question. I don't know कि कर लिया या फिर skip हो गया. अगर skip हो गया तो लिख लो. ठीक है. सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr. So we have done with the basics of chemistry. So in the next lecture we will start chapter 1, that is chemical reactions and equations. So like and subscribe. ठीक है. And share with your friends also so that वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके. ठीक है. So written practice is needed. So do the written practice.